पप्पा लॅपटॉप सुरू आहे. मी
Hello. Hello. Yes, ma'am. Yeah, should I start? Yes, ma'am. Welcome, ma'am, once again. Yeah, Please okay. I'll continue share the second. screen and Yes, ma'am. yes, Asha. Yes, Asha. You have a question? I don't know what has happened. Okay. Yeah. Wel- Welcome back, madam. Please continue second session. So my second session is about identifying variables. Both the sessions quite to a larger extent. Can you see my PowerPoint? Is there a problem in this in viewing this? Yes, ma'am, it's visible. It's visible. It's Okay. visible, ma'am. Now I'm just moving the slides. Can you tell me whether the slides are getting moved? Are the slides moving? No, ma'am. No? No. Okay. I'll use the same technique which I used last time. Okay. So basically, both the topics which are given are quite related to statistics. Now, how? I mean, the initial one you just saw it. The second one is something which is very important, not exactly stats, I should say, but a very important. Okay, so the talk is about the variables and what are these variables and why are they so important and why one should be able to identify them and how these variables can be treated. Treatment means how will you use those variables? How are you treated means how can you use those variables? Many a times there is a quite an not understanding. I mean, there is quite an students don't understand that this is a variable and or there is some variable existing but they don't know that this is a variable on which the test should be performed. So an understanding of variable is very important. Now if you ask me where does this particular understanding of variable comes, when you draft your objectives
and you draft your objectives from the research problems, right? So you raise research questions, you have the problem statement with you, and based upon the problem statement, there are certain objectives you raise. And in fact, these variables are somewhere hiding in your objectives. But then because if your variables are rightly lifted, if you are identifying your variables correctly, your study becomes very easy because you now know what is the actual crux of your study, or on what do you really need to study. So what are these variables is what we are going to, or identifying this, how will you do it? So I'm going to give you an idea about different types of variables. And these different types of variables are actually existing in some or the other way in your objectives and very much in your research problems from where you make the objectives. But then you will have to lift this variable so that it will become very easy for you to prepare the research instrument, that is either the questionnaire or the interview questions, because then you know that मुझे perception के ऊपर questions पूछने हैं, मुझे satisfaction के ऊपर questions पूछने हैं, मुझे प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछने हैं. नाउ इफ यू सी, मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं, एक मैंने बोला सेटिस्फैक्शन, एक मैंने बोला परसेप्शन, और एक मैंने बोला प्रोडक्शन. प्रोडक्शन अगर हम सोचते हो तो नंबर्स में आता है बिल्कुल बराबर. हम दो थिंग्स बोलेंगे. प्रोडक्शन अगर हम बोलते हो तो आउटपुट उसका किस किस वे में आ सकता है, बोलो मुझे. कोई आप सुन रहे हैं ना, बोलो मुझे. प्रोडक्शन यस मैम यूनिट्स में आ सकता है और अमाउंट में हम उसको बोल सकते हैं. बिल्कुल ठीक. नाउ कमिंग बैक, एग्जैक्टली योर कमिंग. यूनिट्स में आता है. यूनिट्स काउंटेबल है. यस मैम. अमाउंट भी काउंट कर सकते हैं बराबर. यस. बस वही वेरिएबल है. Yes, ma'am. बस वही वेरिएबल है. हर एक कंपनी का वही वेरिएबल है, बस वही वेरिएबल है. सो प्रोडक्शन का जब हम कर रहे हैं तो वो यूनिट्स में या रुपीस में हमको क्या करना है, क्या देखना है, कैसा देखना है. शुड बी काउंटेबल. नंबर ऑफ यूनिट्स देख रहे हैं या अमाउंट देख रहे हैं. अभी मैंने दूसरा एग्जांपल लिया परसेप्शन, या फिर मैंने लिया कौन सा वाला लिया, सेटिस्फैक्शन. नो ये क्या है व्हेन, ये क्या है क्वालिटी. ये क्वालिटी बिल्कुल बराबर. ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बता रहा है. पर हमारे सोशल साइंस में तो ऐसे ही कुछ चीजें होती है जिसमें हमको स्टडी करनी पड़ती है, बराबर. इसमें से हम उसको वेरिएबल कैसे लेकर आएंगे. बिल्कुल. सो हमारे सोशल साइंस में ये जो कॉन्सेप्ट्स, ये जो तुमने बोला ना क्वालिटेटिव जो है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स. ओके. ये कॉन्सेप्ट्स या फिर उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट. अदर नेम फॉर दैट इज एट्रीब्यूट. मीन्स स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, देन सिंसियरिटी, एथिकल वैल्यूज. दीज आर ऑल व्हाट एट्रीब्यूट्स. पर एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं. फिर इसका टेस्टिंग कैसे होता है, इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, बराबर ना. सो ये टेस्टिंग के लिए हमारे पास सोशल साइंस में काफी कुछ दिया है जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं. मेजरमेंट एंड स्केलिंग. जो मेजरेबल होता है और स्केल्स होते हैं. सो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल होता है, नॉमिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है, रेशियो स्केल होता है, और इसको अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस फिर प्रिपेयर करते हैं कि हमारे को कौन सा स्केल कहाँ पे डाल के यूज करना है. तो ये स्केल्स को यूज करके हम एक एट्रीब्यूट को वेरिएबल का यू नो व्हाट पोजीशन देते हैं. सो हर एक इसमें हमारे को बट जब हम उसको कॉन्सेप्ट को वेरिएबल के रूप में हम उसको पेश करते हैं, तभी हम उसको टूल के साथ करके फिर करें. जब हम उसको स्केल के साथ करके मेजर करके करते हैं तो वो मेजरेबल हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे स्केल में क्या ऑर्डिनल स्केल में हम लिकर्ट यूज करते हैं, राइट ना. लिकर्ट यूज करते हैं ना हम.
which is very Yes, common. ma'am. So this comes under the ordinal one. So ये ordinal में जब हम वो use करते हैं उसकी value आती है बराबर, हम उसको values दे रहे हैं ना, highly satisfied, highly dissatisfied, 5 को dissatisfied बोल रहे हैं, highly dissatisfied बोल रहे हैं और 1 को satisfied बोल रहे हैं, बराबर नंबर दे रहे हैं ना हम. Yes, ma'am. तो यही एट्रीब्यूट्स को हम नंबर देके हमारे सोशल साइंस में हम उनको वेरिएबल का दर्जा देते हैं जो काउंटेबल में आ जाता है. पर है क्या ये वेरिएबल्स? बहुत सारे हैं जिसका हमको समझना जरूरी है. और अगर हमारे को उसकी समझ आई, वी अंडरस्टैंड व्हाट दिस वेरिएबल्स आर, हमारे को उतना इजी हमारा क्वेश्चनर बनेगा और उतना इजी हमारा टेस्टिंग टूल्स बनता है. फिर जैसा वेरिएबल है वैसे टेस्टिंग टूल्स बनते हैं. दिस इज ऑल्सो वन. सो लेट्स स्टार्ट विथ माई पावर पॉइंट एंड द सेकेंड वन विच आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट. उसमें अरे आई होप यू कैन सी माई स्लाइड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्लाइड टॉक्स अबाउट व्हाट इज एन वेरिएबल. वेरिएबल वो होता है जो नंबर्स में आता है. moving, ma'am. Slide. सॉरी, Slide is not moving. मैंने अभी मूव किया ना उसको. Yes, We ma'am. can see the variable Yes, sir. slide, ma'am. हाँ, वेरिएबल Yes, this one is this one. वही मैं समझा रही हूँ, वेरिएबल को ही समझा रही हूँ. वेरिएबल्स तो क्या होता है आपको मैंने ओरली अभी बता दिया लास्ट 2-3 मिनट्स में, बट एक स्लाइड के दौरे आई विल टेल यू एंड मेक्स मोर क्लियर, क्योंकि हम ऑनलाइन है सो स्लाइड देखने से थोड़ा आइडिया आ जाता है. सो वेरिएबल वो होता है जो नंबर है उसको और जो वैल्यू देता वैल्यू है उसमें, जैसे एज है, हाइट है, इनकम है, यू नो वेट भी केजेस में होता है, पाउंड्स में होता है, इनकम रुपीस में होता है, एज ईयर्स में है, मंथ्स में है, या फिर जेंडर भी एक वेरिएबल है जो हम मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर के तौर पे देते हैं. नाउ ये भी एक वेरिएबल क्या है वो आगे हम देखेंगे एक टाइप ऑफ वेरिएबल में. अभी आप बोलोगे आपने कहा वेरिएबल इज काउंटेबल, तो जेंडर थोड़ी काउंटेबल है. पर जेंडर में मैं अगर मेल फीमेल डाल रही हूँ तो मेल को 1 और फीमेल को 2 देकर तो काउंट कर ही सकती हूँ ना, और नंबर निकाल ही सकती हूँ ना, राइट? तो वो भी एक टाइप ऑफ वेरिएबल बन जाता है. तो हम देखेंगे कौन से वेरिएबल्स है जिसको हम किस किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं. तो वेरिएबल क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में होते हैं, न्यूमेरिकल और वैल्यूज में होता है. और दूसरी बात वेरी होता है. अगर मैंने अभी तुम्हारे एजेस को वेरी करने की कोशिश की तो हर एक एज के होंगे, शायद 2-3 एक एज के होंगे. वेरिएबल्स हमेशा वेरी होते हैं, ओके, एक कांस्टेंट नहीं रहता है. और जैसे अभी वो मैम ने आंसर किया है कि वो जो अभी एट्रीब्यूट्स बोला, वो जो भी उन्होंने बोला, वो एट्रीब्यूट्स जो हम देते हैं वो एट्रीब्यूट्स को हम एक्चुअली एक नंबर देंगे तभी ना वो एट्रीब्यूट्स हमको वेरिएबल के रूप में देंगे. तो दोनों भी मेजरिंग स्केल पे होता है. तो ये वेरीज होता है इवन एट्रीब्यूट्स में. ब्यूटी वेरी होता है, सेटिस्फैक्शन वेरी होता है, बिकॉज एक को अगर हाईली सेटिस्फाइड है तो दूसरा सेटिस्फाइड होगा, और वेरी टू सेटिस्फाइड में डिफरेंस है. सो वेरिएबल वो होता है जो उन्होंने कहा, एक पॉइंट वो उन्होंने कहा वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है. पर क्वालिटेटिव नेचर वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, पर वो एक टाइप ऑफ वेरिएबल है. तो उसको हम जेंडर की तरह में ट्रीट करके उसको स्केल देकर उसको एक मेजरमेंट देकर फिर हम उसको सोशल साइंस में यूज करते हैं. सो ये वेरिएबल क्या होती है? स्लाइड मूव हुआ मेरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये वेरिएबल है क्या? इट इज अ कॉन्सेप्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. कॉन्सेप्ट है या कॉन्सेप्ट में अभी मैंने बोला ना एट्रीब्यूट भी हो सकता है. अनदर वर्ड फॉर कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूट. ओके, सो वेरिएबल इज, ये तो फैक्ट है वेरिएबल का, बट ये भी है कि वेरिएबल इज अ कॉन्सेप्ट और एन एट्रीब्यूट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मुझे फाइंड आउट करना है सेटिस्फैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट है ना, सेटिस्फैक्शन फाइंड आउट करना. ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट है, ब्यूटी इज ब्यूटी एवरीवेयर. ब्लैक आइज इज ऑल्सो ब्यूटी, white skin is also beauty, no, brown skin is also beauty, dark skin is also beauty. है क्या नहीं? So variable is a concept or an abstract idea which can be described in measurable terms. So हम उसको
मेजरेबल टर्म्स में डिस्क्रिप्शन लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए. सो वेरिएबल इज अ कॉन्सेप्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया which can be described in a measurable term. In research, this term refers to the measurable characteristics, qualities, traits, or attributes of a particular individual, object, or a situation being studied. क्लियर हुआ? समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे जाऊं? आगे जाऊं? So, Yes, ma'am. variables are properties or characteristics of some event. कोई भी इवेंट का, एक इवेंट गए कल तुम्हारे यहाँ, एक इवेंट हुआ, प्रोबेबली एक इवेंट हुआ, गैदरिंग हुआ, गैदरिंग पसंद आया नहीं पसंद आया, ओके. प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट, इवेंट का और भी कंपनी में क्या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा था या बुरा था या अच्छा ओके था, ये एक इवेंट है, उसका तुम फाइंड आउट करोगे, राइट ना. तो उसको एक स्केल दोगे कि आई मीन टू फाइंड आउट वेदर पीपल वर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम. अभी ये जो तुम्हारा हो रहा है इसका भी तुम एक पूरा ये कर सकते हो. द आई मीन द पार्ट ऑर्गेनाइजर्स कैन हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हो रहा है. यू कैन डू दैट. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवेंट, सो इवेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वेरिएबल्स आर प्रॉपर्टीज. ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मे बी यू नो मोबाइल फोन. मोबाइल फोन मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कस्टमर को कैसे लग रहा है, बराबर ना. गेटिंग अ लिंक. कोई बीच में बात कर रहा है यार, वो जो भी बात कर रहा है प्लीज दूसरे सुन रहे हैं, अगर आप नहीं तो. कौन है वो? कृष्णा सर. कृष्णदेव शिंदे. कृष्णदेव शिंदे प्लीज. क्या होता है जो सुन रहे हो उनको भी नहीं सुन. तो वेरिएबल्स और प्रॉपर्टी. सो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे मोबाइल फोन. मोबाइल फोन आपको किस में अच्छा लग रहा है, उसका रेटिंग होता है और रैंकिंग होता है, उससे बहुत बहुत इंफॉर्मेशन निकल सकता है. या पर्सन, कोई भी पर्सन पे भी यू कैन डू इट, उस पे भी. लाइक अभी हमने तो और दैट कैन टेक ऑन अ डिफरेंट वैल्यू और एन अमाउंट. जैसे हमने अभी सिंपल एक पॉइंट बताया था जेंडर. जेंडर में वी कैन हैव मेल एज 1, फीमेल एज 2, ट्रांसजेंडर एज 3. सर्क्यूलेट, कलेक्ट द नंबर. मेल इतने आए, फीमेल इतने आए और ट्रांसजेंडर इतने आए. That is also the thing. So variable is not something that we measure, but also something that we can manipulate and something which we can control for. Sometimes we can also manipulate this variable. उस वेरिएबल का मैनिपुलेशन हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल में देखेंगे. जैसे फॉर अभी ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे एक पौधा है, पौधे को ग्रो करना है. पौधे को ग्रो करने के लिए उसको पानी डालना है. पानी कितना अमाउंट का डालेंगे वो वेरिएबल है. अमाउंट ऑफ वाटर, बराबर ना. अमाउंट ऑफ सनलाइट, बराबर है ना. तो 4 पौधे हैं, 4 पौधों को डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर दिया और डिफरेंट सनलाइट दिया तो 4 डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, बराबर. बराबर. Yes, ma'am. Yes, yes. और अगर आपको उसको एक तरीके से ग्रो करना है तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर देंगे, जिसको आप बोलेंगे मैंने इसको हर दिन आधा कप वाटर दिया है, राइट. क्वांटिटी ऑफ वाटर वेरिएबल हो गया. मैंने उसको 6 घंटे धूप में रखा है, बिल्कुल ठीक, वेरिएबल आ गया. सो दिस वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड एंड उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स आता है. इट्स नॉट समथिंग दैट वी जस्ट मेजर बट वी ऑल्सो मैनिपुलेट. सो अभी 4 फील्ड्स हैं और 4 फील्ड्स में 4 तरीके के वीट ग्रो करने हैं और चारों वीट में हमने सेम टाइप ऑफ रेनफॉल आया है, पर उनका जो सॉइल है वो अलग है. तो हमने वेरी करने के लिए देखा कि इतना आई मीन कौन से सॉइल पे कितना पानी आने से कितना वीट यील्ड हो रहा है, उसका स्टडी कर सकते हैं. सब क्वांटिटेटिव है. सो ये होता है कि यू कैन मैनिपुलेट इट.
सो इस अंडरस्टैंडिंग का ये मैनिपुलेट किस तरह से हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। मेरा स्लाइड दिख रहा है? Yes, ma'am. स्लाइड नंबर 5। ओके, स्लाइड नंबर 5 में Yes. मैं कितने तो वेरिएबल्स को मैंने लिफ्ट किया है। मैं आपको अभी आगे के एक 40 मिनट्स में आपको ये कवर करने वाली हूँ, फिर आपका जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को पूछिए। ओके, तो ये वेरिएबल्स क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इंटरवीनिंग और मीडिएटिंग है, मॉडरेटिंग है, एक्सट्रॉनस है, कंट्रोल है, लेटेंट है, मैनिफेस्ट है। पर ये वेरिएबल का ये नाम कैसे आया, ये हमको कैसे फाइंड आउट करना है, अभी हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट वन, qualitative variable. Qualitative variables are the variables with value that describe a quality or a characteristics of the data type. Which type, what type and which category. जब तुम पूछते हो ना what, which, what type, which category, तभी वो क्वालिटेटिव में आता है, बिकॉज ये वेरिएबल क्या डिस्क्राइब करता है, एक क्वालिटी को और कैरेक्टरिस्टिक को ऑफ द डेटा यूनिट्स में, जो भी तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो उस पे से। ओके, with values. For example, they are divided into 4 types. अभी मैं इनको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो 4 टाइप्स का क्या है, तो ये है क्वालिटेटिव में ही, हाँ क्वालिटेटिव में ही 4 टाइप्स है। तो उसमें हम फर्स्ट वाला देखेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल आपको अगर याद भी नहीं होता तो मैं आपको बाद में चिटका बताऊंगी नॉमिनल ऑर्डिनल कैसे उसका समझने का। तो ये जो वैल्यू नॉमिनल का मतलब है नंबरिंग। इसमें कैसा होता है, ये ऐसा वेरिएबल है बिकॉज यहाँ वैल्यूज कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज स्पीकिंग, किसी को पूछ रहे व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, और आपने ऑप्शंस दिया हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, जो भी हो। अभी अगर आपने मलयालम, मराठी, इंग्लिश, हिंदी दिया तो क्या क्वेश्चन गलत हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया? बोलो ना। Ma'am, can you repeat the question? Sorry? Hindi is a national language, that's why it comes first. Good joke. But there are so many people who don't speak Hindi in their own country, right? Right. No, that's not a reason. Hindi, English, Marathi, Malayalam. Yeah, again, my question is, अगर हमने मलयालम, मराठी, इंग्लिश और हिंदी डाला तो कुछ गलत हो गया क्या? No, ma'am. No, ma'am. कुछ गलत नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑल लैंग्वेजेस, बराबर। ऐसा भी कोई नहीं है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी पहले डालना है, जरूरी है? नहीं है। तो ये जब ऐसे टाइप ऑफ अभी कैसे होता है मैं बताती हूँ। जो कॉल तब तुम इसको क्वांटिटी देते हो तो किस तरह से यूज करते हैं, तो हम क्वेश्चन बताते हैं। ये जब हम ऐसे वेरिएबल्स को लेते हैं जिसमें हमको सिर्फ एक नंबर, एक लिस्ट देना होता है, या पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के लिए करना है। सो मैंने आप लोगों को ये दिया और आपको बोला आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम जानते हो तो प्लीज करके हो कौन सा लैंग्वेज आप स्पीक कर सकते हो। तो शायद मेरे पास है हिंदी, इंग्लिश, मराठी आएगा, इसमें क्लासरूम में मलयालम शायद होगा। तो मैं उनको करूंगी, हिंदी आउट ऑफ 60 इतने जन ने बोला, मराठी इतने जन ने बोला, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लॉट में से कितने जन ये बोल रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल है ना, ये नॉमिनल वेरिएबल, दीज आर द वैल्यूज विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिक, बस लॉजिकल सीक्वेंस, उसको सिर्फ एक लॉजिक चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए। अभी नॉर्मली क्या होता है क्रिकेट टीम में, जब हम टीम डालते हैं तो हम पहले कैप्टन, वाइस कैप्टन ऐसे देते हैं, बराबर, जस्ट बिकॉज दे आर कैप्टन, वाइस कैप्टन। बाकी लिस्ट ऑफ लाइन तो जाती है ना, हाँ, तो वैसे जाएंगे। तो अभी ब्लड ग्रुप है, ब्लड टाइप है, 0 AB B कोई भी चलेगा क्या उसमें। अगर मैंने बी पहले डाला तो क्या बी वाला ग्रेट हो गया और ओ वाला नहीं है, या फिर ओ डाला क्योंकि वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज ओनली
टू bring in आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफाई करने का पर्पस से ये वेरिएबल पूछा जाता है। ना वेरिएबल को कलेक्ट क्वांटिटेटिवली कैसे करते हैं? हिंदी को हम टैब्यूलेट करेंगे 1, इंग्लिश को टैब्यूलेट करेंगे 2, मराठी को टैब्यूलेट करेंगे 3, मलयालम को टैब्यूलेट करेंगे 4 देंगे, और जो 1 डालेगा वो जितना मैक्सिमम 1 आया मीन्स वो हिंदी वाले, 2 आए वो इंग्लिश वाले, ऐसे करके हम नंबर फाइंड आउट कर देंगे। ये एक टाइप ऑफ वेरिएबल है जो वेरी मच क्वालिटेटिव में आता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, व्हाट टाइप एंड विच कैटेगरी, बट ये वेरिएबल को भी हम नंबर्स दे रहे हैं। ओके, नंबर्स देके फिर हम बोल सकते हैं कि ओ कैटेगरी के 20 लोग थे, ए बी के ब्लड ग्रुप के ये थे, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो सेम थिंग विथ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, same thing with gender. This kind of a variable is again is just for numbering sake, is just for the purpose of identification and for the purpose of classification. Okay, उससे ज्यादा नहीं है, but then you can give them a value and then you can get the numbers of the value. समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, should we move to the next one? Next one we move, and this is called as an ordinal variable. Slide move हुआ? Yes, ma'am. Slide Yes, दिख ma'am. रहा है ना? Slide number 8 दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now this is called as an ordinal variable. Ordinal variable में थोड़ा सा extension है of the nominal variable. ये भी एक ऑर्डर ही है, बट ये ऑर्डर एक अलग लॉजिक से दिया जाता है, और ये लॉजिक थोड़ा वैल्यू बेस्ड है। तो ये वेरिएबल में अगर तुम शॉप जाते हो तो तुम्हारा साइज अगर m है तो वो m है, अगर तुमको s दे दिया तो छोटा हो गया। तो s और m में फर्क है, m और l में फर्क है, l और xl में फर्क है। जब इस तरह से तुम्हारे को अगर कुछ डेटा चाहिए तो तुम्हारे को ऑर्डिनल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, और वो डेटा फिर ऑर्डिनल डेटा बनता है। जब तुम डेटा सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन तौर पे करोगे तो वो नॉमिनल डेटा होगा। जब तुम एक के ऊपर का एक का फाइंड आउट करोगे तब जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा फ्रॉम द 1 to the second, तो उसको तुम बोलोगे ऑर्डिनल डेटा। जैसे एकेडमिक रैंकिंग में फर्स्ट आने वाले को 90% मिला है, सेकंड आने वाले को 86 मिला है, तो 86 90 से कम है, तो उसमें वो डिफरेंस है। पहले इसमें डिफरेंस नहीं था, पर इसमें वो डिफरेंस है। वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड is a very common way of measuring the ordinal data. And this types of variables when you are means तुम्हारे इसमें जब ऐसे वेरिएबल्स है जिसमें तुम इस तरह से उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल से तुम परसेप्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ऑर्डिनल वेरिएबल से सेटिस्फैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ऑर्डिनल वेरिएबल से यू नो सिंसियरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तुम एक प्रॉपर स्केल दोगे तो उसमें से तुम्हारे को वो इंफॉर्मेशन आएगा। ये सिर्फ रैंकिंग ही नहीं देता है, बट तुम्हारे को क्लासिफाई भी करता है और रैंक भी देता है। तो वो ये ऑर्डिनल स्केल नॉमिनल से एक स्टेप अहेड है, बिकॉज ये सिर्फ क्लासिफाई नहीं करता है पर वो रैंक भी देता है, रैंकिंग भी करता है। तो जहां तुम्हारा डेटा बोलता है या यू नीड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड, यू नीड एन ऑर्डिनल डेटा इंफॉर्मेशन, और वेरिएबल्स वैसे प्लेस करना है। ओके, सो दिस इज एन टाइप ऑफ एन वेरिएबल। ये हम सिर्फ क्वालिटेटिव में ही कर रहे हैं अभी तक का, पर सबको नंबर दे सकते हैं। ऑर्डिनल डेटा होने के बाद अभी डाइकोटोमस और पॉलीकोटोमस वेरिएबल्स बोलते हैं। डाइको मीन्स 2, हम पूछते हैं ना डू यू वॉच टीवी, यस और नो। यस कितने जन ने बोला, नो कितने जन ने बोला, पाई चार्ट बन गया, राइट? इसको बोलते हैं डाइको। डाइको इज 2 वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट ओनली 2 कैटेगरीज इज कॉल्ड एज अ डाइको। ये भी एक वेरिएबल है। पॉली 2 से ज्यादा, पॉली मीन्स ज्यादा, तो परफॉर्मेंस लेवल्स है, बिलो एवरेज है, सेटिस्फैक्टरी है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है और आउटस्टैंडिंग है। ये भी एक स्केल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्केल। लिकट नहीं है पर स्केल है। नाउ गोइंग बैक टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एजुकेशनल अटेनमेंट्स, SSC, HSC, ग्रेजुएशन and post graduation. Can we equate
HSC विद ग्रेजुएशन नहीं, वो और 3 साल आगे पढ़ चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो 2 साल और आगे पढ़ चुका है। सो इसमें अगेन क्या वेरिएशन आ रहा है, सिर्फ नंबर नहीं हो रहा है, पर सिर्फ तुम उसको क्लासिफाई नहीं कर रहे हो, पर उसका रैंकिंग भी दिखा रहे हो, पर उसका एक स्टेचर आगे का जो वेरिएशन है वो भी दिखा रहे हो। तो इसको बोलते हैं डाइकोटोमस और पॉलीकोटोमस वेरिएबल्स। जैसा तुम्हारा डेटा डिमांड करता है तुम्हारे को वैसे उसको पूछना है, फिर जिस पे तुम्हारे को ये वेरिएबल यूज करना है उस पे तुम ये वेरिएबल यूज करोगे। डू यू स्पेंड मनी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चनर की बात कर रही हूँ, अगर तुम्हारे को कुछ तो स्पेंडिंग पे है ना, तुम्हारा कैसा है, टू अंडरस्टैंड, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, टू अंडरस्टैंड द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। स्पेंडिंग मेरा वेरिएबल हो गया, आया समझ, और वो स्पेंडिंग पे राइट बराबर, वो स्पेंडिंग पे मैं बहुत सारे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, do you spend on food or how much do you on an average how much do you spend, क्वेश्चन आ गया। ऑफ कोर्स सब लोग स्पेंड ही करेंगे, विदाउट स्पेंडिंग कुछ होगा नहीं, बट देन स्पेंडिंग को यस नो का क्वेश्चन नहीं आएगा ऑन फूड। देन फिर उसमें हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन ग्रोसरी, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये सारे थिंग के लिए स्पेंडिंग हमारा वेरिएबल हो गया। डिपेंडिंग ऑन दैट वेरिएबल हमको देखना पड़ेगा, हम नॉमिनल क्वेश्चन पूछेंगे, ऑर्डिनल क्वेश्चन पूछेंगे, या डाइकोटोमस पॉलीकोटोमस पूछेंगे, या फिर हम उसको क्या कौन सा वाला लास्ट वाला रह गया है, पॉलीकोटोमस, यही वाला प्रेजेंटेशन से 2 ते 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू वांट, हाउ मच डू यू स्पेंड। Okay, do you think spending on this is essential, agree, don't agree, not sure, again wo scale aa gaya, so you can ask questions on that kind. So now if you have something called as an qualitative data, there are, so we see this qualitative variable divided into nominal variable, ordinal variable, dichotomous and polycotomous variables. Now we move to a next kind of a variable which is called as a quantitative variable. बराबर, I have done qualitative, now I am coming to quantitative. Qualitative में हमको नंबर देना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन पीछे जाकर तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑर्डिनल वेरिएबल के यहाँ वेरी सेटिस्फाइड को 5 दिया, सेटिस्फाइड को 4 दिया, न्यूट्रल को 3 दिया, डिससेटिस्फाइड को 4 दिया, और 5 वेरी डिससेटिस्फाइड नंबर दिए ना, हमने करते हैं ना ऐसा हम। या फिर रैंकिंग का क्वेश्चन दिया कि that the salaries को whatever रैंकिंग का क्वेश्चन दिया कि do you like the storage capacity of the mobile phone, सो तुम बोल रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन पूछा, मोबाइल फोन्स है, रैंक द मोबाइल फोन ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी, ऑन इट्स परफॉर्मेंस, ऑन द डिस्प्ले, देन ऑन इट्स साउंड, थिंग्स लाइक दैट। तो आप फिर उसको बोल रहे हो कस्टमर्स को रैंक करो, तो आप डिफरेंशिएशन वहां पे फाइंड आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे वो नंबर दे रहे हो आप, रैंकिंग का नंबर बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे प्लीज रैंक इट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। तो मुझे मेरा फोन का वो जो भी फोन का बता रहे हैं, वो फोन का मेरे को नोकिया है, नोकिया का मेरे को डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको रैंक 1 दे दूंगी। कोई और है जिसको लगता है कि नोकिया का डिस्प्ले बिल्कुल अच्छा नहीं, वो 4 दे देगा। सो डिफर हो रहा है ना, वेरिएबल्स डिफर हो रहे हैं ना, पर मैंने इधर नंबर दिया। तो क्वांटिटेटिव डेटा को भी मैंने नंबर्स में डालकर इधर का ट्रीटमेंट दिया है, डेटा को ट्रीट किया है, डेटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म दिया है, जिससे तुम एनालिसिस करोगे। अभी दूसरा जो वेरिएबल है वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो ये वेरिएबल दैट डिस्क्राइब्स अ मेजरेबल न्यूमेरिकल डेटा, ये वेरिएबल तो नंबर में ही होता है, तो कोई नहीं है। तो ये जब भी समथिंग हाउ मच एंड हाउ मेनी, हाउ मच 20 grams, 30 grams, 20 kilometers, how much do you want me to walk, 20 kilometers, 30 kilometers, how many students are there in the class, how much do you want to eat, so you will say I want to eat 1 carrot, I want to eat 2 carrots, ये तो already quantitative हो गया है, so they are quantitative data. This type of numerical variables, these are numerical in nature, obviously, because there is a number associated with it, and there could be continuous or discrete. Continuous means वो जो continuous data जाता है, age continuous है,
वेट कंटिन्यूअस है, गुरुवारी आहे. मिलीग्राम्स में जाएगा. त्यांचं नाव काढ. हाइट कंटिन्यूअस है. टाइम 19 तारखेला त्यांचं नाव आवर्स टाक 11 ते 12 मिनट्स सेकेंड्स में जाता है, वो कंटिन्यूअस डेटा होता है. 11 ते डिस्क्रीट 12 मीन्स वो वो होल वैल्यू होती है. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. निघाला. जब मैं आई कैनॉट हैव 2.5. माझं presentation I cannot नाव say a आहे. pregnant lady who has 1.5. टेबलला We नाव घे. calculate her as 11 ते 1 12. only. Okay, निघालं. so number of houses in a community, रोल discrete नंबर तेच on a राहू दे. lighter side, फक्त नाव माझं discrete. cancel कर. Alter So कर. number of houses in a community, people in the family, हम्म. class attendance, these are त्यानंतर? all in whole numbers. So these are called as a दूसरा discrete माझा data. है तो ये काफी easy है. ये जब तुमको ऐसे डेटा लेना है तो ये वेरिएबल्स तो वैसे भी क्वालिटेटिव है, सो क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव इजी वेरिएबल है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल. समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I am Yes, going to the third one which is called as an independent. But मैं जब आता independent सिखाऊंगी शनिवारी आपको मला दे. independent के साथ dependent भी आणि सिखाने शनिवारचं वाली हूँ. इकडे घे. I'm going to talk about independent and dependent बॅच together. नको हलू. Okay, so शनिवारी now आमचं we go खाली to वर the भालेकरची मशीन. understanding of what is an independent भालेकरची variable रेखांची and दोन what ते is a चार. dependent variable. Screen में तुम्हारे को clear दिख रहा है ना? कुठलं? एक example दिख रहा है तुम्हारे को वहाँ Yes, पे? ma'am. येस मॅम. अरे एक एका वेळेस example दिख रही है ना तुम्हारे को screen पे? 8 आणि 8 16 मुलं होत आहेत मग. Effect of studying in the वेगळं academic दाखवतो performance of आलं का students. लक्षात? बराबर? मग Yes. त्यापेक्षा भालेकरचं नाव Now खाली I घे have माझ्या taken an इथं. माझं example नाव भालेकरचं of इथं. effect बॅच of तशीच राहू दे, रोल studying नंबर. in the academic performance of नाहीतर मग तुझं students. कुठं तो बसत असलं तर इसमें तुझं टाकून घे कुठं. studying is a variable. Obviously yes, अगर हमने fact ले कारण माझं लिया and कसं माझं मी academic टेस्ट performance टाकते is ना a मी. variable. बराबर? Now त्यामुळे मग studying तुझं कौन सा माझं type of काढून. variable है और academic performance कौन सा type of variable है? जितना तुम तुझं पढ़ोगे इथं कर मग उतना 4 तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर होगा. तुझा नंबर काय अंडरस्टँडिंग वरती है. आहे ना. अगर जितना कम मग 4 पढ़ोगे ते 6 ला तुझं घे और आधी. तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, अभी ये मेरे को मत बोलना कि बहुत माझ्या क्लेवर लोग होते हैं माझं जो नाव बहुत घेतलं ना कम 4 ते पढ़ते हैं 6 और ला. फिर भी उनको मार्क्स तिथं मिलता है. तुझं दिस नाव इज घे एक्सेप्शन टू द रूल. प्रेझेंटेशनला. मैं आपको वो नहीं पढ़ा रही, मैं आपको सिर्फ वेरिएबल्स बताना चाह रही हूँ. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? स्टडीइंग. नाउ ये क्या है? It presumes to cause change in the other variable. Please note what I am putting there. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर रहा है? It presumes to cause change in the other variables. Means पढ़ाई studying ज्यादा हुआ तो परफॉर्मेंस ज्यादा होगा. स्टडिंग कम होगा तो परफॉर्मेंस कम होगा. इसलिए मैंने अपना एक दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच कैन बी मैन्युपुलेटेड. मैन्युपुलेटेड मीन्स ऊपर नीचे कर सकते हैं. बड़ा ऊपर नीचे मीन्स ज्यादा कम कर सकते हो. ज्यादा स्टडीज, उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है? ये वेरिएबल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, एंड उसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल है जो अपने खुद से वहां है, उसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो उसका जो मैनिपुलेशन है वो रिजल्टेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में दिख के आएगा. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट चेंज बिकॉज ऑफ अदर वेरिएबल्स. डिपेंडेंट वेरिएबल अदर वेरिएबल्स क्यों बोला है? नॉट ओनली इंडिपेंडेंट बट एक्सट्रॉनियस, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग से वो चेंज होता है, इसलिए अदर बोला है. ओके, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ. वो एक वेरिएबल है जिसमें से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो. इसमें स्टडिंग बोला है. स्टडिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडिंग ले सकते हो एंड देन उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. नंबर ऑफ आवर्स कैन गो टू यूपीएससी वाले. नाउ टेल मी, यूपीएससी वाले अगर 2 घंटे पढ़ेंगे तो यूपीएससी क्रैक नहीं करेंगे. सिंपल है ना. सो they really need to put a lot of efforts. So number of studying to the academic performances. So in this title, there are 2 variables which are seen. One is studying. The next one is academic performance. Studying is very much independent in nature. It is that which is causing another variable to change. It can be manipulated. It is also called as an causal change लाता है उसमें. Dependent variable is a variable that is bringing change because of another variable, usually affected by the manipulation of the independent variable. Dependent variable is a result of the manipulation of the dependent variable.
They are also called as monitored or experimental variable. They are also called as an effect variables. So now जब रिसर्च होती है जिसमें तुम्हारे को कॉजेलिटी बताना पड़ता है, मीन्स कॉजेलिटी बिटवीन द टू, मीन्स इन दोनों में स्टडिंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन है क्या, ये अगर प्रूव करना है तो इसको कॉजल रिसर्च के थ्रू हम प्रूव करते हैं, जिसको हम कॉजल रिसर्च डिजाइन बोलते हैं. जब हम कॉजल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं हमारे स्टडी में, देन वी नीड टू identify the independent variable and identify the dependent variable. So studying is an independent variable. Studying generally affects academic performance, and that is why academic performance becomes a dependent variable. Was it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm going ahead. Next example, same thing. I've not changed. The only example is changed. Now tell me, look at the slide, think about it, and tell me whether I'm right or wrong. Yeah, this is right. Diet and exercise. If we follow diet and exercise, then physical fitness will be there. So diet and exercise is independent variable and physical fitness will be dependent variable. Agree? Yes. Yeah. Other than her, any other person in the class who says he agrees or disagrees, it's okay. We'll discuss over it if you disagree. It's right. Do you disagree? Anybody there disagreeing? No. Ma'am, I have a question. Yeah, sure. Yeah, so dependent variable, let's say it is y, right? And independent is x. So Okay. the dummy variable that when we say dummy variable, so it is independent variable or dependent variable. Why are you confusing yourself by saying dummy? What does dummy mean? Why do you want to say? I heard that when I read a book. I heard that independent variable. I'm just confused in that only. X and y. No, in this there is nothing like a dummy variable to me. Actually, I feel there are some things which we could call dummy, but let me come to the extraneous and intervening. Then we can think about the dummy concept. But don't confuse yourself with that, because when you left for your study, you should be very clear. Now, when we come to the intervening, probably the intervening could be a dummy kind, but when you have something where very, very clearly you have the variable set, and one is showing that we can manipulate it, and that result of that manipulation can come on some other variable which is dependent, then it's very clear. Then there's no question of dummy realizing there. Dummy is creation of confusion. Okay, okay. If you have something to ask me as a sentence or a statement, and you want me to tell you what is a dependent and independent variable in that, or what is an extraneous or an intervening or whatever, I will be able to help you. Okay, I got it. Yeah. So this is what is the independent and dependent variable. Remember, you could have this more when you're doing something of a causal research. At the end, I would also tell you at that what kind of a study, what kind of variables you should be able to lift, and what variables will give you an analysis of what data. Okay. So this is one thing. Now I'm going ahead to the next slide, and now I'm going to talk about another variable which is called as an intervening or a mediating variable, and then I'm going to add on this intervening with a mediator also. Mediating, but I will do it with a moderating variable. I'll do it with moderating. Okay, so these are the different types. So let us not confuse. Okay, I'll first talk about the intervening or a mediating variable. Now ये इंटरवीन क्या करता है, ये मैंने बोल दिया, ये मेरे मुंह से निकल गया. ये क्या करता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में एक मीडिएशन लाता है, मीडिएट करता है उसको, और इंटरवीन करता है, घुसता है बीच में, घुसने का कोशिश करता है. वो घुसने का जो इफेक्ट है, वो मीडिएट करने का जो इफेक्ट है, उसको बोलते हैं इंटरवीनिंग और अ मीडिएटिंग वेरिएबल. उससे क्या होता है, whose existence is inferred but it cannot be measured or manipulated, उसका इफेक्ट होता है.
सो अभी देखो यहाँ मैंने एक पिक्चर डाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसमें क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, और ये मीडिएटर और ये इंटरवीनिंग क्या कर रहा है, उसको एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दे रहा है। जब कोई वेरिएबल ऐसा देता है तो उनको इंटरवीनिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल बोलते हैं। ये पूरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करना है, पर उसका जो अप्रोच है वो इनडायरेक्ट वे में है, वो डायरेक्टली लिंक नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली लिंक करता है, और इससे वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप और भी बेहतर एक्सप्लेन करता है। ओके, सो अभी मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रही हूँ। सो ये एग्जाम्पल है इंटरवीनिंग और ए मीडिएटिंग वेरिएबल का। सपोज मैं बात कर रही हूँ, अ टाइटल इज दैट द स्टूडेंट्स ऑफ द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द चिल्ड्रन इज बेटर विद द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये मैंने एक डाला है, ओके और ये मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी रिसर्च प्रॉब्लम निकाल सकती हूँ ना, राइट ना। मैं रिसर्च प्रॉब्लम इज स्टेटिंग दैट द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू रीड इज बेटर व्हेन द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इज बेटर। ओके, सो इसमें नाउ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये मैंने सिर्फ एक रिसर्च प्रॉब्लम निकाला है, दिस कुड बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, ये तो मेरे स्टडी के बाद ही मुझे पता चलेगा, पर मैंने जनरल मेरा हाइपोथेसिस और ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम निकाला है। तो कौन सा वाला है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये किस पे इंडिपेंडेंट है, और चाइल्ड का रीडिंग जो है वो डिपेंडेंट है, बिकॉज जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होता है वो एक्सपोज्ड होता है, उसके पास ज्यादा बुक्स होंगे, वो लाइब्रेरी जा सकता है, वो बेटर एक्सपोजर में होगा, इसलिए उसके बच्चों का एबिलिटी ऑफ रीडिंग ज्यादा होगा। पर इसका एक मीडिएटिंग वेरिएबल है पेरेंट्स एजुकेशन लेवल। फिर उसका मतलब ये है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो भी हो, बट अगर उसका पेरेंट का एजुकेशन लेवल अच्छा है तो वो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करेगा। सो इफ यू लुक एट इट, parental education is indirectly influencing the independent and the dependent variable. Agree or disagree? Agree, Agree. ma'am. Agree. So you have to know तुम्हारे स्टडी में कौन सा वेरिएबल है, तुम क्या कर रहे हो, कौन सा टेस्टिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और किस पे तुमको क्वेश्चंस निकालना है। सो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में से पेरेंटल एजुकेशन बिकम्स एन इंटरवीनिंग और अ मीडिएटिंग वेरिएबल। ओके, सो नाउ आई गो अहेड, और दूसरा वेरिएबल नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन मॉडरेटर। मॉडरेट क्या करता है, ये ना थोड़ा स्ट्रेंथ देता है, ये चेंजिंग डायरेक्शंस को स्ट्रेंथ देता है, जैसे दे इम्प्रूव अ स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ये थोड़ा सा मीडिएटर फिर भी थोड़ा मीडिएशन में स्लो हो सकता है, पर मॉडरेटर स्ट्रेंथ लाता है डायरेक्शन में और डिपेंडेंसी में। तो ये कैसे होगा, सो दिस इज मॉडरेटिंग वेरिएबल, एग्जांपल ऑफ मॉडरेटिंग। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया है मैंने लिया है कि आवर्स ऑफ स्पेंडिंग ऑफ एक्सरसाइज एंड रेस्टिंग हार्ट रेट। ओके, सो ये क्या करता है, एक स्ट्रेंथ भी देता है और डायरेक्शन भी देता है, रिलेशनशिप भी बताता है, मॉडरेट करता है। सो ये क्या है, अगर मैंने आवर्स ऑफ एक्सरसाइज किया, हाँ, बट मैं अराउंड 60 इयर्स की हूँ, वहां हार्ट अटैक आके मर जाऊंगी, बराबर मैं 50 इयर्स की हूँ, हार्ट अटैक आके मर जाऊंगी, तो बोला जाता है अरे भाई तेरा एज इतना है, तू यही इंस्ट्रूमेंट्स कर और इतना ही कर। तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आवर्स ऑफ एक्सरसाइज, मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट इज डिपेंडेंट। सो इसमें मॉडरेटिंग क्या है, मेरा एज, वो मॉडरेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक डायरेक्शन दे रहा है, बिल्कुल सही। मैं बहुत एंथुजियास्टिकली जिम जाऊंगी और पूरा वेट उठा लिया और नेक्स्ट डे मेरा गया खत्म, आई एम गॉन। समझ आ रहा है ना तुम लोगों को। सो
ये मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है। तो एज अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। सो मैं स्पेंड करूं एक्सरसाइज पे, पर एक लिमिट में स्पेंड करूं, फिर फाइंड आउट करूं। सो दिस काइंड ऑफ एन एज, फिर मैं फाइंड आउट, फिर ये मेरा एज जो है ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है। सो आप अभी जब लिफ्ट करोगे तो आपको वो कैपेसिटी होनी चाहिए बोलने के लिए, मेरे स्टडी में ये इंडिपेंडेंट एक्स है, ये इंडिपेंडेंट वाई है, ये इंडिपेंडेंट जेड है, और दिस इज व्हाट विच इज अफेक्टिंग, एंड ये मीडिएट कर रहा है x1। क्लियर? समझा? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? Ma'am, हाँ, are we supposed to do anything with this moderating variables? Like should it be the part of our research? सी ऐसा कुछ नहीं है कि हर, सी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू यूज ऑलवेज। मैं सिर्फ आपको वेरिएबल्स पढ़ा रही हूँ। वेरिएबल्स पढ़ाने में आपको आइडिया होने चाहिए ना कि आपके वेरिएबल्स क्या है। अगर ये वेरिएबल ले रहे हो, ये कौन सा वेरिएबल है। सपोज मॉडरेटिंग वेरिएबल, सपोज एज इज वन ऑफ द वेरिएबल, आपका स्टडी का प्राइम है, तो वो चला गया ना ऊपर। एक मैंने ऑलरेडी एज का फैक्टर का दिया है ना, जो क्वालिटेटिव में कर सकते हो आप, राइट ना। तो ऐसा नहीं है कि हर वेरिएबल को आपके स्टडी में यूज करना है। Yes, ma'am. ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टू गिव यू एन आइडिया कि रिसर्च में ये सब वेरिएबल्स होते हैं, और ये वेरिएबल्स का एक आइडिया एज ए रिसर्चर तुमको रहना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो कि हम क्या वेरिएबल्स पढ़ेंगे, क्या वेरिएबल्स हमको पढ़ना है, या हमारे रिसर्च में है क्या। बहुत सारे बच्चे पैरामीटर्स को वेरिएबल्स बोल देते हैं। पैरामीटर्स आर नॉट वेरिएबल्स। Parameters are just, deep features of a particular variable. पर they say that ये मेरा पैरामीटर्स वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि ये अलग टाइप ऑफ वेरिएबल्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट, अगर आपके इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं है तो ठीक है, पर अगर आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट यूज कर रहे हो तो आपको ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तुम्हारे मे बी एनालिसिस में है या तुम्हारे डेटा में है, तो तुम्हारे को एक स्पेसिफिक टूल यूज कर सकते हो जिससे तुम्हारा एनालिसिस इजी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझा? इसलिए मैं बोल रही हूँ। Yes. हाँ, या सो ये हो गया। मैंने बोला सो इंटरवीनिंग मीडिएटिंग का बोला मैंने आपको, इसका भी बोला मैंने आपको, मॉडरेटिंग बोला, आई में इधर। नाउ वी कम टू अनदर वेरिएबल, उसको बोलते हैं एक्सट्रॉनस। में सिर्फ तुमको अलग अलग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दे रही हूँ, नॉट नेसेसरी कि ये सारे वेरिएबल्स तुम्हारे रिसर्च स्टडी में इंक्लूडेड हो। अगर रिलेवेंट है तो करो, बट मैं बोलूँ जैसा इंटेंसिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स चल रहा है, जिस तरह से ये स्टैटिस्टिकल टूल्स का ट्रेंड चल रहा है, उसमें इसका आइडिया रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो देन नाउ दूसरा एक अभी वेरिएबल मैं आपको बोल रही हूँ, एंड ये है एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है, अभी इसका तुम मेरे को आंसर दोगे। हाँ, मैं अभी आपको ये सिखाने के बाद मैं प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाऊंगी और आप मेरे को उसका एग्जाम्पल एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या उस पे होगा वो बताओगे। ठीक, डील? यस। नाउ एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होता है? सपोज मैं क्लास में एक टेस्ट ले रही हूँ। ओके, टेस्ट ले रही हूँ, उसमें कंट्रोल वेरिएबल्स भी होते हैं। कंट्रोल वेरिएबल क्या है? सब बच्चे 60 मिनट्स का टाइम कंट्रोल है। सो मेरा टाइम क्या था? टाइम ऑफ दैट एग्जाम इज 60 मिनट्स, बराबर। ओके, एंड देन आई एम टेकिंग अ टेस्ट। बाहर लाइट ठीक नहीं है, बाहर के साउंड आ रहे हैं, फिर रूम में एजड, मैं जनरल बोल रही हूँ, आ रहे हैं, ये क्या हो जाता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अभी तुम अभी भी देख लो, ये कैपेसिटीज है ऑफ लर्निंग का। मैं आई एम नॉट सेइंग, हम भी कोर्स वर्क करते हैं, एंड आई आल्सो डू ऑनलाइन कोर्स वर्क, एंड आई आल्सो फाइंड पीपल just taking that coursework too lightly and doing it half heartedly, घूम रहे हैं मोबाइल लेकर, आधा सुन रहे हैं आधा नहीं सुन रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वो ऑर्गेनाइजर्स मर के उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड इनका ऐसा
होता, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है फिर। ये क्या है, एक्सट्रॉननेस है, ये तुम्हारे को अफेक्ट करेगा टू योर परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही। वैसे ही एज में है तो जो डिसीजन एक 30 इयर्स वाला लेगा वो शायद 18 इयर्स वाला नहीं ले पाएगा। सो ऐसा जो वेरिएबल्स है जो आपके स्टडी में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करेगा और उसमें चेंज लाएगा, जैसे लाइट, साउंड, एज, रूम टेम्परेचर, टाइम ऑफ द डे, फिजिकल कैपेसिटीज, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसे जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है ये जब आएंगे ये एक्सटर्नली आते हैं और वो एक्सटर्नली आके तुम्हारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करोगे, उस वेरिएबल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। अभी मैं आपको ये पुराने एग्जाम्पल पे जाती हूँ और इसमें मेरे को आप एक्सट्रॉनियस वेरिएबल बताइए। Age. Bad road quality. सॉरी, Where you spend the time for exercising on the road, suppose running, हाँ, and that time road quality is not good. ओके, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, नॉट गुड। आगे के देखेंगे। हाँ ठीक है, अभी ये वाला बोलो, इसका बोलो। Age. अच्छा. Sorry. Availability of books or यस, और भी बोल सकते हो लाइन में फटाफट। teachers, like टीचर्स, ठीक है, और Learning hours. लर्निंग Hours. Student learn when they studying proper learning hours they are acquiring or not. नहीं, वो तो डायरेक्ट है ना स्टडीइंग में, लर्निंग आवर्स। एनवायरमेंट, मैं एक्सट्रॉनियस बोल रही हूँ, एक्सट्रॉनियस, वो तो स्टडीइंग का लर्निंग आवर्स डायरेक्ट है ना मैडम। place for study, प्लेस फॉर स्टडीइंग, डिस्ट्रैक्शंस, Language. लैंग्वेज एक्सट्रॉनियस हुआ। Suppose it's No, not no. belong to his own language then. एक मिनट, हाँ, रिसोर्सेज इज एक्सट्रॉनियस। एक मिनट, लेट मी जस्ट deliberate on the question of languages. The class team, do you think language is an extraneous variable? no ma'am, it is directly It's a depending. It's a It cannot be an extraneous variable. Yeah. Okay, it cannot be. Language is directly. So what? Language is what variable then? dependent. Independent. I've put it on the slide. independent. I put it on the slide. Okay. Okay. Intervening. Oh. Is intervening, na? Yeah. It is not directly affecting, but indirectly affecting, right? Mm-hmm. Agree? Yes. Agree, ma'am. Agree. So now we go for the next one, and that is called as a control variable. Control variable means just control होता है। जैसे I said ना, 60 minutes of a class, सबके लिए 60 minutes ही है। So that is kind of a control जो तुम लाओगे। So amount of light for the plant growth, water and fertilizers are constant, right? उतने ही देने हैं तभी growth हो जाएगा। So it is a factor that keeps constant or unchanged all through the experiment in order to test the relative relationship of the independent and dependent variables. और दूसरा एक मैं बोलूँ, इसमें काफी होते हैं। इवन सोशल साइंस में हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। सो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट दिया और मुझे उनको ट्रेनिंग देना है, तो मैं देखूंगी स्टैटिस्टिक्स का इन लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं उनको कोचिंग करूंगी। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उन पे, बच्चों पे। या फिर मैं ये एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, मैं उनको म्यूजिक सुनाऊंगी और बोलूंगी ये म्यूजिक सुनते सुनते आप एक एग्जाम देना जो 60 मिनट्स का होगा। ओके, नाउ लुक, लिसनिंग टू म्यूजिक इज इंडिपेंडेंट, परफॉर्मेंस इन द एग्जाम डिपेंडेंट। हाँ, तो इसमें अभी इंटरवीनिंग कौन सा होगा? इंटरवीनिंग वेरिएबल विल बी द टाइप ऑफ म्यूजिक। Okay, extraness will be the sounds coming out of it. समझ रहे हो आप? Yes, ma'am. And control variable is 60. Yes, ma'am. 60 minutes. तो मैंने सारे उसमें ट्राई किया है बोलने को, तो ये हो सकता है। कंट्रोल वेरिएबल हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट पे होता है। ओके, सो नाउ मैम, हाँ बोलिए। इसमें जो एक्सट्रॉनस वेरिएबल
हैं उन्हीं को हम कंट्रोल वेरिएबल भी बना सकते हैं. लाइक if someone is studying, then the amount of light and the environment, we can control all these things. Then the नहीं extraneous नहीं नहीं variable नहीं, then can that is become a not control extraneous variable. ना. एक्सट्रानेस को तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे. हाँ, if you control it, then you will have another effect. तुम्हारे पे शायद साउंड रहेगा ना. लुक एट इट ना. सपोज कोई एग्जाम दे रहा है, बाहर से साउंड आ रहा है, तुमने उसको साउंड को स्टॉप कर दिया, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कंट्रोल ऑन इट ना. यू विल बी एबल टू डू इट बेटर ना, परफॉर्म इट बेटर ना. बट एक्सट्रानस वेरिएबल हम उनको कहेंगे जो कि कंट्रोल हो सकते हैं, या जो नहीं हो सकते ओके उन्हीं को ही नहीं, एक्सट्रानस. लिटरली वो एक्चुअली नहीं कर सकता है कंट्रोल. कंट्रोल हमारे हाथ में होता है. जो हम नहीं कर सकते हैं वो ही एक्सटर्नस होता है. एक्सटर्नली उसको इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ओके मैम. हाँ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, और वो एग्जांपल पे आप मेरे को सारे वेरिएबल्स दिखाओगे. उसका आंसर मैं पूरा दूंगी. डोंट वरी अबाउट इट. अभी ओरली बताया है, अभी मैंने ओरली बताया था आपको, पर मैं ये थोड़ा सा कर रही हूँ. चलो ये एक्सरसाइज करो, इसका आंसर मैं बताऊंगा. इसका मेरे को इंडिपेंडेंट बोलो, इसका मेरे को डिपेंडेंट बोलो, इसका मेरे को मॉडरेटिंग बोलो, इसका मेरे को एक्सट्रानेस बोलो, और इसका मेरे को मीडिएटिंग बोलो. ट्राई करते हैं. Music is independent and academic performance will be dependent. म्यूजिक इज प्लेइंग. अच्छा, सो प्लेइंग म्यूजिक बराबर. प्लेइंग म्यूजिक इज इंडिपेंडेंट. आंसर को रिवील करूं. ठीक है. ओके, आंसर को रिवील करती हूँ. ओके, सो प्लेइंग म्यूजिक इज इंडिपेंडेंट. Yes. Academic performance dependent. डिपेंडेंट. Type of music like classical, rock, light, moderating. Moderate कर रहे हो. Mediating is self-esteem or self-efficacy. Yes. Control variable class duration of 60 minutes. Oh, yes, yes, yes. Okay. So, Extraneous is ventilation, noise and lighting. Ventilation, noise, and light. correct. Who are सब variables? यस मैम. Idea आया variables का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ Yes, क्वेश्चन ma'am. Yes, पूछना है? कुछ क्वेश्चन पूछना है? Do you have नो any मैम, question? इट्स परफेक्टली क्लियर. No, ma'am. It's clear for me. So that's all. We just come to the end of the session. Okay. So now we have something called as a latent variable and manifest variable. ये भी they also come under the above category, but I need a special reference to it and giving you an idea, because ये भी एक variables type सी है जिसको आपको ऊपर के understanding से इसको ट्रीट कर सकते हो. तो लेटेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड. सो हमने ऊपर के एग्जांपल्स भी देखे हैं. विच कैन नॉट, सैटिस्फैक्शन, परसेप्शन, दीज आर ऑल समथिंग विच यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर. बराबर ना. यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर, सो दे आर कॉल्ड एज लेटेंट वेरिएबल्स. एक आइडिया देने के लिए ये भी एक टाइप है करके. मैनिफेस्ट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली. हमने ऊपर ऑलरेडी देखा है. सो लेटेंट वेरिएबल्स में इंटेलिजेंस नहीं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव द स्टडी टू, अरे यार मैंने थोड़ा गलत किया है. टू स्टडी आना चाहिए, या फिर यू आर डूइंग अ स्टडी ऑफ IQ अमॉन्ग MCOM स्टूडेंट्स. ओके, सो देन व्हाट आर द लेटेंट वेरिएबल्स? इंटेलिजेंस, मेमोरी, कैपेसिटी टू ग्रास्प. ये सारे लेटेंट वेरिएबल्स हैं जो तुमको मालूम नहीं, दिखकर नहीं आ रहे हैं. फिर इनको तुम ट्रीट करो ना. ऑर्डिनल डेटा पे ले जाओ, क्वालिटेटिव को नंबर दो, उसका एक स्केल डालो, या फिर कुछ टेस्ट करो, उसको इंटेलिजेंस का लेवल डिराइव करो, उनको कुछ एक्सपेरिमेंट कराओ, मेमोरी दो, मेमोरी टेस्ट दो, फिर यू कैन मेक क्लेम्स ऑन इट ग्रास्प करने के लिए. ये सब तुम जब करोगे तभी तुमको ये, पर ये लेटेंट वेरिएबल्स हैं. मैनिफेस्ट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो रिजल्ट आता है. सो जब ये लेटेंट वेरिएबल्स है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी तो मुझे एक परफॉर्मेंस आएगा, उसको हम बोलेंगे मैनिफेस्ट वेरिएबल्स. दिस इज अगेन one type of an variable which is again very important to know. Okay, so now how do we actually define a variable? कैसे डिफाइन करते हैं? तो by giving it a name, we give a name to it.
or we give a category to it, or we give a number to it. So now name. So let's go back to our top one. So we are just giving a name or a category. Hindi, English, Marathi, English. We are just giving a name or a name to it, or we giving categories, male, female, transgenders. नेम और कैटेगरी दे रहे हैं ना, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं. वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल को नंबर दे रहे हैं. So by giving it a name, by specifying its type, categorize it, or give it a, either continuous or discrete में, or give a value 1 to 3 rupees, income, whatever it is, you give a value. So ये वेरिएबल को डिफाइन करने का अंदाज है. नाउ क्वेश्चन बड़ा आएगा, एंड दैट ये मैं रेस कैसे करूं, ये वेरिएबल्स आते कहां से है, हाउ डू आई एक्चुअली रेस दिस वेरिएबल. बहुत सिंपल है, माय लाइफस्टाइल, and that is look into your research questions. You have the variables there. Look what and with what you want to prove. Your variables are those. See what variable is related to what. कौन सा किसको relate हो रहा है तुम्हारे स्टडी में, वो तुम्हारे variables है. वो attributes भी हो सकते हैं, उसको scale यूज करो, measuring scale यूज करो और बोलो. Understand which one will be independent variable and which one will be dependent variable. Okay, पर ये points भूलना मत. To establish a causal relationship between two variables, you must have 3 conditions. Causality, causal दे रहा है. Causal approach means एक के ऊपर दूसरे का dependence. Independent on dependent variable. जब तुमको ये कॉजालिटी दिखाना है या कुछ 2 वेरिएबल्स के रिलेशन दिखाना है, तो 3 कंडीशंस एग्जिस्ट होनी चाहिए. एक है वो टाइम ऑर्डर. तो कैसा है कि एक कॉज होने के बाद ही इफेक्ट आएगा, वो ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम ऑर्डर. ज्यादा पढ़ोगे तब परफॉर्मेंस आएगा, पहले कॉज फिर इफेक्ट. Covariation, a change in the cause produces a change in the effect. Variation आता है, covariation बोलते हैं उसको. And rationally, there must be a reasonable explanation of why they are related. So obviously, number of hours put, better performance. So ये conditions भूलना नहीं. So I am very thankful to give me this opportunity and for a patient listening. I stop here. I think I've crossed the time. Have I crossed the time, madam? No, ma'am. No, ma'am. No, madam. So I'm within time. Thank you so much, ma'am. Yeah. It's a really wonderful session. Rita, madam. So Yes. if anybody has got any kind of a questions they want to ask me. Thank you so much, It's an excellent session. We clear every minute doubts under this session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It has been such Ma'am. an honor to be a part of this workshop. On behalf of Professor Ramakrishna Maurya College, I would like to extend my heartfelt gratitude to our estimate guest, Shamla ji, ma'am. Thank you once again, and thank you all of you. Thank you. Deepak, do you have a question? Divekar, Deepak, Can you share the PPT? Yeah. Deepak, Divekar, do you have a question? Deepak? Ma'am, hello. Yes. Yes. Ma'am, Yes. actually, I wanted to ask in the first session you took today, a few questions you have given.